Hello, friends. A very warm welcome, and we are going to pick up important themes for mains and also some elements for prelims, and also trying to understand how you can bring more understanding in your preparation. First news item that we picked up with respect to understanding is that swastika still linger on some flags in Finland's Air Force. So the symbol was used long back, that is in the before Second World War and during the Second World War, Finland's Air Force adopted swastika emblem in 1918, and soon after you can say the country gained its independence after more than century of Russian rule or Imperial Russian rule. That's what we can say. So the Finnish Air Force adopted blue swastika, and it was a national insignia on all its planes till 1945. So the fact that it is now linked with the Nazi connection and it is linked with the extremism, fascist ideology, that is why it is being seen that. But for Indian culture, Indian society, Hinduism, it is a very, very deep, personal, and a positive thing. So Count Erik von Rosen of Sweden donated Finland's first military plane in 1918, which bore swastika symbol. So that's just like a symbolism you can use in essay and so partners and not rivals. That is what India and China are saying. But India is very much clear. India is going to create border uh, infrastructure. It is going to create a kind of a deterrence. It is going to be economically more powerful. It is not allow. It will not allow. It must not allow itself to be subservient to China and its strategies. That is why Tokyo and afterwards we went to Tianjin. So Modi is not just rejigging power relations, but it is just a kind of a strategic, realistic approach at the time when the US is trying to showcase certain kind of weaponization of tariffs and other kind of changes, fundamental changes, I would say, which are coming up in the global and also in bilateral relations. So, what are the three keywords you will write in your answer? Strategic, autonomy, and free trade. That is very important. Strategic autonomy and free trade means here that trade must be fair, trade must be transparent, and it must be on mutually respectable basis. So what you are going to write also about is that how border talks or the border tensions are very much important in this regard. Peace and tranquility along LDC is very very important, and both are committed to improving ties on mutual trust. That is what one can say. They are two great, powerful nations and big neighborly friends and partners. So, what we can say is that it is very important, but then we have to strengthen strategic communication, mutual trust, because China is an all-weather friend for Pakistan also. The five principles of peaceful coexistence, they are there, but they must be seen in such a way that they are positively used. So that is what is all about. And when we speak about India-China relations, we have to trace at least from 2001 India-China relations, and that's what we can say that it is really going to help us. Otherwise, we can't say that really India and China are really going to work in that direction. 15 around 15,000 crore budget to conduct census 2027. So, Registrar General of India, which comes under Ministry of Home Affairs, that is for prelims, and MHA will move a proposal for the approval of the Union Cabinet. Census, both phases of census, house listing operation, and that to be conducted from April to September 26, and population enumeration that will be done in February 2027, except for Ladakh. So it's a positive thing, very important. Census is very important. Ladakh, JNK, Himachal, Uttarakhand, where it will be conducted in September 2026. Details on housing conditions, household amenities, access possessed by households, all these things will be, you know, collected. Apart from it, this will be the first census which will be digital. So next year, one can say that question can come up on the relevance and on the future aspects or subsidy question aspects. Yeah, Center notified its intention to conduct the census 2027. This is the first time the decennial census has been delayed by 6 years, and it is also because of pandemic.
and the decennial census has been conducted since 1872 without a break. The census 2027 will be the 16th decadal census overall and the 8th since independence. This is very important for the prelims. And what it is all going to include, ये भी आप देख लीजिए, housing conditions, amenities, assets, demography, religion, assets, religion, scheduled caste, scheduled tribes, languages, literacy and education, economic activity, migration and fertility. This is a very good example that how Kerala farmers fight to preserve wetlands. It went T. N. Mukundan is an example of public spirit, of civil society, of citizens' awareness, of the support of judiciary. That how he went on to preserve the wetlands, and he is working in tandem with like-minded people and groups जिन्होंने environmental conservation के लिए positive step उठाया और उन्होंने वहां पर shopping mall नहीं बनने दिया. So this is a very very I think pertinent case study जो आप इससे ethics में definitely you must go to score well. Coming further, fear of losing buyers and mass layoffs, uncertainty looms for Noida textile units. ये example है. India is the fourth largest supplier to the US, and the fact is that US nearly accounts for 35% of Indian apparel exports. तो अब आपसे अगर पूछा जाए तो whether government must give PLI, government must give certain kind of credit support, certain kind of schemes must be created. This is what is supposed to be done. 60 to 70% women workers, mostly first generation industrial employees, they are also going to be very very what I should say very severely impacted. Again, scholarships to career opportunities by more people in the city are learning Mandarin. So China, it is very very important. May Yu, Chinese center in Delhi's Karol Bagh, a native Mandarin teacher, Claire Laushi guides a group of beginner level students to simple sentences. Wo, he, cafe, that's what she is saying. So the question is that Chinese proficiency test is very very important, and learning the language has helped uh, secure scholarships and also the communication. People are fascinated and ultimately they approach it from the career perspective. Chinese is a highly practical language and can be very rewarding, not just in the corporate but also in the government also. Apart from tourism, many college students are choosing Mandarin over traditionally popular options like French and German. And even Delhi University, Professor Payal Maggo here is given university-led survey. So certificate courses, SOL, around 2,000 students were interested and already have taken admission to the course, and that is very important. Taiwan is currently offering a fully funded scholarship for Indian students, especially in the fields like MBA, IT, engineering, in the India-Taiwan Labor Exchange. So that is very, very important. Very important. It's a positive thing, and that's what, from that perspective, we can say so. Moving further, PM makes Swadeshi product pitch. तो क्वेश्चन अराइजेज, आप क्या करते हैं ऐसा आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपके जीवन में? ऐसा क्या है जो आप स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए करेंगे? इस पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हैं, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, दिवाली आ रही है, या फिर होली आ रही है, या फिर नया वर्ष है, whatever it is, or even your daily life, you want us to say that how you are going to make sure that Swadeshi you are promoting. Naxese for Indian NGO working to educate girls. Now, question here arises that Safina Hussain, the founder of foundation to educate girls. The question arises that it is a very very sensitive topic. Girls are being left out. Millions of girls are being left out. They are going to be they are going to be suffering, and they are going to face stigma. They are going to suffer in their personal life also. So the gap, जो गैप सरकार नहीं पूरा कर पाई 30,000 विलेजेस में, दिस एनजीओ हैड डन, एंड दैट इज व्हाई शी हैज बीन अवार्डेड मैक्स अवार्ड. और एजुकेट गर्ल्स बिगेन विद टू विलेजेस इन राजस्थान, पाली एंड जालौर, and a list obtained from the Ministry of Human Resource and Development with the names of districts having considerable gender gap in terms of education. तो उसे इन मैम ने किया, शुरू किया, टीम बालिका बनाया, मॉडल बनाया,
और उसमें फिर जेंडर चैंपियंस भी आएंगे, और सोशल एटीट्यूड फिर भी आते हैं, बैरियर्स आर देयर, पॉवर्टी, पेट्रियार्की, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रायमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको आप एशियन नोबेल प्राइज भी कहते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर गोल इज टू टीच 10 मिलियन लर्नर्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन अगेन कोट इट स्मार्टली इन जनरल स्टडीज पेपर 1 जब बात आती है सोसाइटी। फिगर है यूएस 467 बिलियन needed until 2030 to decarbonize four of India's emission heavy sectors। आप इसको 467 की जगह अराउंड 500 बिलियन डॉलर्स भी समझ सकते हैं। तो currently you can say India met one of its 2030 targets, ensuring 50% of electricity electricity installed capacity is based on non-fossil fuel sources. Target on creation of 2.5 to 3 billion tons of additional carbon sinks. The third target है reduction of emissions intensity by at least 45% from 2005 level। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा। एंड सेंटर फॉर सोशल एंड यू नो एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉटम अप सेक्टर स्पेसिफिक असेसमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टील है, सीमेंट इंडस्ट्री है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर डीपली कार्बन इंटेंसिव। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का रोल बहुत ज्यादा आ जाता है। हमने अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसकी बात की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो चार सेक्टर हैं वो ही ऐसे हैं जो इंडिया के आधे से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को व्हाट आई शुड से कैप मतलब उसके जिम्मेदार है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्टील है, सीमेंट है, और जो कार्बन हैवी आप कह लीजिए कोल है। तो ये जो फैक्ट सेक्टर, जो जो भी ये पावर सेक्टर है, जैसे जैसे जो हम कहेंगे, तो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन, बट देन स्टिल वी नीड मोर। तो ये फैक्ट्स आप नोट कर सकते हैं और उसको आप फिर यूज भी करेंगे। दिस ईयर had been very very heavy in terms of मानसून, व्हेन वी से साउथ वेस्ट मानसून ने डिल्यूज क्रिएट कर दिया, फ्लैश फ्लड्स क्रिएट कर दिए, मल्टी हजार्ड वार्निंग्स आई हैं। तो हमें इसके कारण की बात करनी होगी, हमें इसके पैटर्न की बात करनी होगी, हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करनी होगी जनरल स्टडीज सी के पर्सपेक्टिव से। Indians biggest community of international students, that is very important. So Moldova ambassador to India, she is saying, oh, Anna Taban, and she is claiming कि कैसे इंडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्मॉल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोल्डोवा इज नॉट डायरेक्टली इन द कॉन्फ्लिक्ट, बट इट इज इन अ वनरेबल पोजीशन। So it is moving towards west, and Moldova may join EU by 2028। And this she is the first resident ambassador to India जो फुल फ्लेज मिशन आया है, आप कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन शी इज आल्सो क्लेमिंग दैट वी हैव now around 3,000 Indian students who are the biggest community of international students in Moldova, and you know uh, she wants that uh, we must you know stop the Russian-Ukraine war somehow. A million Ukrainian refugees, they have transited through Moldova, and at one point there were around 1 lakh refugees, most of them women and kids. They comprise around 5% of the country's 2.5 million population। And कैसे मोल्डोवा के थ्रू इंडियन स्टूडेंट्स भी इंडिया वापस आए। सो दिस इज हाउ कंट्री विच इज नॉट इवन डायरेक्टली प्रेजेंट, मोबिलिटी, पार्टनरशिप एंड स्किल्स की जहाँ बात आती है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंडिया कैन प्ले a very big role, and definitely India is moving towards in a positive direction। Moving further, the good thing about science is that it's true whether or not you believe in it। It's an amazing empirical sentence। अगर आप मानते हैं साइंस भला कर सकती है, तब भी वो सही है, अगर आप उसका मिस यूज करेंगे तब भी वो सही है, साइंस रहेगी। दिस इज द गुड थिंग अबाउट साइंस। आपके मानने या ना मानने से वो बदलने वाली नहीं, वो एक शाश्वत सत्य है, वो एक ब्रह्म सत्य की तरह है। साइंस, विज्ञान, अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें, तो विज्ञान भी यहाँ डीपली स्पिरिचुअल एलिमेंट से जुड़ा रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So that is why any country which is logically moving but have a deep spiritual roots,
इट विल बी साइंटिफिक इन एटीट्यूड एंड टेम्परामेंट, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी। साइबर फ्रॉड रजिस्ट्री में 13 लाख ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हुई, 5,000 करोड़ सेव हुए। ऐसे बड़े फैक्ट्स अगर आप एनसीआरपी, दैट इज नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, एंड इट इज डेवलप्ड बाय इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसमें 1.4 मिलियन साइबर क्रिमिनल्स जो लिंक हैं फाइनेंशियल फ्रॉड से और साइबर क्राइम से वो जुड़े। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि देर आर 61 बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन बोर्ड रजिस्ट्री का जो पार्ट है, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। दैट्स व्हाट यू शुड ट्राई फॉर। फर्टिलाइजर्स की हमने पहले भी चर्चा की है। गुड मॉनसून आया, खरीफ फसल आई, फर्टिलाइजर डिमांड बढ़ी, तो आप कह सकते हो कि हम, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यूरिया हम मैक्सिमम हम इंपोर्ट करते हैं। जो आज की डेट में आप कहिए सऊदी अरेबिया है या यूएई है, रशिया है, ओमान है, कतर है, उससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। डीएपी की अगर आप बात करोगे तो हम सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, मोरक्को से, रशिया से, जॉर्डन से। तो उससे फर्क पड़ा है। फर्टिलाइजर की सेल तो फर्क पड़ता है, लेकिन हमने साथ साथ में सप्लाई शॉर्टफॉल की वजह से जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो हमारा है ही थोड़ा, हम कंप्लीटली इंपोर्ट डिपेंडेंट है। लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सप्लाई स्क्वीज, चाइना की सप्लाई स्क्वीज से बहुत फर्क आया। तो गवर्नमेंट ने जो है वो अंडर एस्टिमेट, अगर मैं कहूँगा कि डिमांड को अंडर एस्टिमेट किया फॉर फर्टिलाइजर ड्यूरिंग खरीफ, पर्टिकुलरली ऑन अकाउंट ऑफ राइस एंड मेज। तो क्योंकि बोथ बोथ ऑफ दीज आर हाई नाइट्रोजन कंज्यूमिंग क्रॉप्स रिक्वायरिंग 3 बैग्स और मोर यूरिया पर एकड़। सोयाबीन और पल्सेस के तरह नहीं, जहां पर नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है और दे रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ यूरिया। तो ये एक फैक्ट है। इंडिया के 161 रिजर्वायर्स भी भरे हुए हैं, 83% से ज्यादा पानी है उनमें। एंड इंपोर्ट ऑफ यूरिया डीएपी 2023 के बाद डाउन हो रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कैप, अगर कट नहीं कर सकते तो हमें कैपिंग देखनी पड़ेगी, और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कैसे हम उसको और साइंटिफिक बनाएं। उर्जित पटेल is now voice of India in the International Monetary Fund. This is very important. आरबीआई गवर्नर भी थे, और एक प्रोडिगल रिटर्न है, क्योंकि पटेल was busy with academic work and policy research which sharp focus on India's financial sector and energy economics. Now he will be the executive director. Government and India both are winners in this regard. मिनी क्लाउड बर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। There is no increasing trend in cloudburst over India in the recent years. Impossible to forecast, and mini cloudburst जो है वो बढ़े। तो रेनफॉल से जुड़े हुए हैं। वो एवरेज रेनफॉल अगर होती है और साथ साथ में आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो व्हाट इज बेस्ट वी कैन डू इन द शॉर्ट एंड द लॉन्गर रन, ये हमें सोचना होगा। इंडियाज इकोनॉमिक चर्न, द नेक्टर ऑफ ग्रोथ, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आप कुछ की पॉइंट निकाल सकते हैं। कोविड-19 के बाद से एससी की तरह लिखा गया है इसको। इकोनॉमिक डेटा एनर्जी सिक्योरिटी का एक डीप लिंक है। और हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन भी बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज सब बढ़ा। तो इंडिया एक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और थर्ड लार्जेस्ट की तरफ बढ़ रही है। मार्केट एंड रेटिंग एजेंसीज ने रिकॉग्नाइज किया इंडिया के डिसिप्लिन को। एंड देन वी हैव टू सी द बेनिफिट्स आल्सो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बेसिक सर्विसेज, डिलीवरी स्केल। साथ साथ में आपको ये भी देखना होगा कि जब आप ऐसे फैक्ट्स को नोट करते हैं, तो कैसे आप क्रिटिकल एलिमेंट लेके चलते हैं कि और आगे फ्यूचर में आपको क्या करना होगा। तो इंडियाज ethanol blending is surged from 1.5% in 2014 to 20% today. It is saving lakh crore in foreign exchange. Over 300 compressed biogas plants are being rolled out under sustainable alternative towards affordable transportation. So these are very important points. And the question is that India का जो स्कोर बोर्ड है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, और हमारी जो जीडीपी की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, दैट इज मोर देन 34 ट्रिलियन। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो हमने डेली नोट किए हैं, जो हम फैक्ट्स की बात करते हैं, उस पर्सपेक्टिव से डिफरेंट है। तो यहाँ सिर्फ आप रिवीजन पर्सपेक्टिव से इसको देख सकते हैं। Why orcas offering fresh prey to humans? Are these killer whales waiting for human response before recovering or abandoning the offered prey? एक एग्जाम्पल है, तो आपको सिर्फ पीटी के इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से उसको देखना है, दैट किलर व्हेल्स क्या होती हैं, और आप कह सकते हो कि उनके स्पीसीज, जीनस, इस पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हो। नाउ APC of .apk hack, तो tech savvy developers mostly in India
दे क्रिएट मिलिशियस फाइल्स, एपीके फाइल्स, ऑफिशियल ऐप्स को मिमिक कर देते हैं, वो फिर अंडरग्राउंड ट्रेंड होते हैं, फ्रॉडस्टर्स उनको खरीद लेते हैं, दे आर प्री कोडेड, और उसको कस्टम ब्रांडिंग लोगों के साथ हो जाता है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल, मॉल्स, सर्विस पोर्टल्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, कैमर्स एपीके को भेज देते हैं। तो वंडरफुली graphic complete representation is given here. So I doubt in examination it is going to come up, but then you must mention it. आप आंसर्स में से how fake apps are using financial fraud, ये आ सकता है। एंड इन्वेस्टिगेशन कैसे उसको टैकल करती है टू decrypt, and how financial trails are following it, how the government is working on it, that is very very important along with the role of Google, ये आपको बताना। मेडिकल टूरिज्म इंडिया के लिए कोई नया नहीं है, पहले भी इंडिया की जो बाईपास सर्जरी है वो बाकी जगह सस्ती है, नी रिप्लेसमेंट सस्ता है। यूएस में $50,000 लगेंगे तो इंडिया में $5,000। तो एनआरआई बैलेंसिंग मॉर्गेजेस, किड्स एजुकेशन, रिटायरमेंट गोल्स, तो डिफरेंस इन कॉस्ट सेविंग्स विद ट्रीटमेंट इन इंडिया कैन बी लाइफ चेंजिंग। तो वैल्यू फॉर मनी, फाइनेंशियल रिपल इफेक्ट, पॉलिसी पुल, डिजिटल पुश, ये जो की वर्ड्स हैं। हमें प्रीलिम्स में क्या देखना होगा? हमें प्रीलिम्स में देखना होगा कि कैसे हमारे पास और सेंटर्स कौन से हैं, विच आर द सेंटर्स फॉर मेडिकल टूरिज्म, व्हाट आर द की सेंटर्स, व्हाट आर द की एरियाज, दैट इज व्हाट वी नीड टू सी व्हेन वी कम फॉर आज इस बार भी मेंस के अंदर क्वेश्चन आया था, द यूनियन फूड मिनिस्ट्री का जो यहाँ पे एग्जांपल है, हाउ इट इज गोइंग टू वीड आउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, who are not deserving, they must be weeded out, because the food subsidy is coming down, because when you see from 2021 to 2025-26, it is 2.03 lakh crore. So that is very very important. आपको उस एंगल से देखना है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुतिन, रशिया, चाइना अपोज सैंक्शंस। तो अगेन ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, जब हमने पहले शुरुआत की थी तब हमने डिस्कस किया था इंडिया चाइना रिलेशंस की, हमने पहले भी बात की थी। तो ये बहुत जेनरिक है, लेकिन हमें जेनरिक नहीं पॉइंट देखने, हमें देखना है कि व्हाट एलिमेंट्स वी कैन पुट इट, बिकॉज इफ यू आर जस्ट राइटिंग कि पीसफुल बॉर्डर होना चाहिए और उससे हो जाएगा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, बिकॉज इट विल बी वेरी जेनरिक। So we already said we have to bring specific facts and ideas. Moving further, क्यू कॉमर्स फर्म्स सी बिग गेन इन स्मॉल आइटम्स, डेफिनेटली। अभी तो जीएसटी की बात भी जैसे हम करते हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स आर गोइंग टू हेल्प अस। तो डिलीवरी कॉस्ट फॉर लार्ज अप्लायंसेस 3 to 4 times higher than e-commerce. That is why stocking bigger appliances a key problem in many cities. Dark store designed to maximize inventory, fast moving होना चाहिए। ट्रांसपोर्टिंग बिगर अप्लायंसेस सेफली आल्सो नीड्स फोर व्हीलर्स एंड एडिशनल पैकेजिंग। तो ये की पॉइंट है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। क्यू कॉमर्स और ई कॉमर्स की जब बात होती है कि कैसे वो राइज कर रहे हैं, कैसे वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, कैसे वो रेलेवेंट है, तब आप उसकी बात कर सकते हैं। कि इलेक्ट्रॉनिक्स, दे ऑब्वियसली दे हैव टू मूव स्लोली, स्टॉकिंग देम इज नॉट आल्सो इजी। और जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए दैट इज व्हाई मोर मार्जिन इज देयर, इट इज ऑल अबाउट बिजनेस। इसके और भी नो डायमेंशन हो सकते हैं, लेकिन हम इस पर्सपेक्टिव से इसको बोल रहे हैं। फॉरेन इन्फ्लो इनटू गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इट इज हिटिंग 5 times high, because government bonds is receiving a lot of money, and it is an ongoing process, because S&P ने हमारी क्रेडिबिलिटी को अपग्रेड किया, और जो इंडिया का रिस्क है वो भी वो हाई नहीं है। इंडिया इज डाइवर्सिफाइंग ऑल्सो, एंड देन इन स्पाइट ऑफ यूएस थ्रेट्स हम फिर भी हम बेटर कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल, मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा, एफपीआई टू ड्राइव मार्केट्स, हमने ऑलरेडी इसकी बात की। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस कि कैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग और पॉलिसी मेजर्स, दे विल बी प्रोवाइडिंग ए बफर अगेंस्ट द फॉरेन हेडविंड्स और एक्सटर्नल हेडविंड्स, ट्रैफिक नेगोशिएशन, और उसके बाद इक्विटी मार्केट। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फ्यू टेकर्स क्यों है? जस्ट 1% ऑफ 2.7 million सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ है ऑप्टेड फॉर यूनिफाइड पेंशन स्कीम, because it has got less benefits compared to old pension scheme, as well as NPS have led to क्या। तो इस बात की अगर जो बात की गई है तो इसीलिए है कि कोल्ड रिस्पॉन्स है, बिकॉज अंडर द यूपीएस an employee has to contribute 10%, the government contributes 18.5%. It provides guaranteed pension of 50% or average of the
basic pay for the 12 months prior to retirement to those with 25 years or more of service, and the pension is fully indexed to inflation. A minimum pension of rupees 10,000 is paid to those with 10 years or more of service. अगर पेंशनर्स की डेथ हो जाती है तो 60% इज ऑफ द लास्ट रन पेंशन इज पेड टू द फैमिली. लेकिन वही बात है, लॉन्ग सर्विस पीरियड, मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन, लिमिटेड बेनिफिट्स और रिटायरमेंट एंड लिमिटेड डेफिनेशन, ये उसकी बात पर है. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको डील को और अच्छा किया. गवर्नमेंट ने बोला कि benefits will be available under the market linked NPS to the UPS, including tax free withdrawal of 60% of corpus at termination. बेनिफिट्स भी उसमें दिए. तो वो बात है कि हमें देखना होगा कि भाई कैसे कैसे सिर्फ फिजिकल प्रूडेंस ही नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो है कैसे आप एक जस्टिफाइड वे से मोटिवेट करते हुए उनके जो वर्क है, उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको आप वर्ल्ड क्लास रख सकते हैं. तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स आर देयर अगर आप फॉरेन मॉडल्स की भी अगर आप बात करते हैं. तो ये इशू है, ये टॉपिक है जिसको हमें देखना. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए. PNGRB, उसका ना उसका स्ट्रक्चर और उसके बाद उसका वर्क प्रोफाइल, दैट इज व्हाट आई यूज. पावर पॉलिटिक्स, ट्रेड एंड टैरिफ्स, तो वही बात है कि अगेन अगेन वी आर रीडिंग अबाउट इट. तो हमने पहले भी चर्चा की है. इसमें जो बात की गई है कि इंडिया को इंगेज रहना चाहिए, इंडिया ऑलरेडी इंगेज है. लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया का सिर्फ चाइना के साथ ही नहीं, रशिया के साथ ही नहीं, अफ्रीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इवन लैटिन अमेरिका के साथ भी हमारे बहुत डीप रिलेशंस हैं. और ब्रिक्स की जहाँ तक बात है वो है, SCO है, फिर उसके बाद हम अगर WTO की बात करें वहां पर भी, तो सब जगह हमने ऑलरेडी चर्चा की है. तो इट्स काइंड ऑफ जेनरिक टॉपिक जो हमें रिवीजन करने में हेल्प कर सकता है. स्वदेशी की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. मूविंग फर्दर, रोसिया अभी बहुत इंपॉर्टेंट है. रोसिया जो है एक फॉर्मिडेबल न्यूक्लियर आइस ब्रेकर है जो कि शिपिंग लेन्स को ओपन कर देगा फार ईस्ट और यूरोप के बीच. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने पहले भी चर्चा की थी. तो PT के लिए इंपॉर्टेंट है कि नॉर्दर्न सी रूट जो है, जो 5,600 किलोमीटर का नॉर्दर्न सी रूट है, ये शिप्स का फ्यूल को रोकेगा. जो बहुत ही पॉजिटिव है. जब ऑयल प्राइस राइज होते हैं तो NSR विल बी मोर फेवर्ड. रशिया को और ज्यादा बेनिफिट होगा, रशिया का डोमिनेशन बढ़ता है. लेकिन पॉइंट यही है कि आप जब आर्कटिक रीजन की बात करते हैं, विच इज 21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बिगर देन द US एंड कनाडा पुट टुगेदर, एंड इट इज होम टू 21,000 स्पीसीज ऑफ स्प्लेंडेड फ्लोरा एंड फौना. तो एनवायरमेंटलिस्ट जब कहते हैं कि आइस ब्रेकिंग इज अ नॉइजी अफेयर बिकॉज रॉसिया उनको तोड़ेगा और माइग्रेटरी पैनल जो पैटर्न्स हैं और जो हैबिटेशन है उसको भी नुकसान पहुंचाएगा, बट देन एवरीबडी सेज कि नहीं, वो साइलेंट है, नॉट टू मच विल बी देयर, और आइस ब्रेकर्स तो बहुत समय से हैं. एंड देन इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि डीजल या वैसा फ्यूल नहीं होगा, मेथनॉल और ग्रीन अमोनिया न्यूक्लियर यूज होगा. सो देयर आर एग्जांपल्स, बट देन एनी environmental impact may seem localized but ripples will be going very deep. रशिया जो है वो जियोपॉलिटिकल टूल की तरह इसको देखना चाहेगा. तो दैट इज हाउ इट इज. नॉट एवरीबडी इज कन्विंस्ड, लेकिन आप प्रीलिम्स के लिए इसको तैयार कर लीजिए. हाउ वाटर टेक मेक है, तो these are different elements given here in water technology. आप सारे के सारे जब आप वाटर टेक्नोलॉजी को देखते हो, कोई अगर डिसैलिनेशन की बात करता है, कोई वेस्ट वाटर और सीवेज प्लांट को यूज करने की बात करता है, तो वाटर स्टार्टअप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इसमें से की नेम्स को अगर आप नोट करते हैं और आप देखते हैं, जैसे सोलिनास है, और कैसे वो एक स्टार्टअप, कैसे उनकी फंडिंग है, कैसे AI का यूज करते हैं, कैसे वो Tier 1 सिटीज के अंदर जहाँ पर हर जगह वाटर की किल्लत है, तो कैसे वो करोड़ों रुपए बचा रहे हैं. इलीगल कनेक्शंस, कंटेमिनेशन, लीक्स, डिफेक्ट्स और पाइपलाइन लॉस को रोकने में मदद करते हैं. म्यूनसिपैलिटी की जो डिग्स हैं उनको रोकने में मदद करते हैं. तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, जैसे उराऊ लैब्स है, वो प्रोप्राइटरी लिक्विड सॉल्ट्स को यूज करते हैं, रिन्यूएबल हीट सोर्सेज को यूज करते हैं, लाइक सोलर, बायोमास एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सो फोर्थ. तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है, वाटर की जो मतलब वाटर टेक की जो स्टार्टअप्स हैं, दे आर प्लेइंग ए वेरी वेरी क्रूशियल रोल. और इसको आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से जरूर देख सकते हैं. So with this, we end our discussion, and I give you certain things to read about and to spend more time so that you become more proficient and confident in the approach. Thank you very much.